Good morning, Class 8th students. We are on chapter number 3, which is related to our history portion, and the chapter name is Ruling the Countryside. And in this chapter, we have studied about the company became the Diwan, revenue for the company, the need to improve agriculture, the problem a new system is devised, the Monroe system, and our last topic was all was not well. And in today's class we are starting, and we will try to cover two topics, which is crops for the Europe and does color have a history, and another topic which is why the demand for Indian indigo. So let's start with today's topic, which is crops for Europe. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. So जो इंडिया की लैंड सरफेस एरिया है वो यूरोप से बड़ा है, उसको एक मैप के ज़रिए हम देखेंगे. So this is the world map, and in this map you can see यहाँ पर ये है ब्रिटेन मीन्स यूके. हम लोगों ने देखा था किस तरीके से ये लोग आते थे. यहाँ पर इंडिया है और ये है यूके. सो जो लैंड सरफेस एरिया है यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन का, वो बहुत ही छोटा है, और वहाँ पर ये लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे, और जितना भी करते थे वो सफिशिएंट नहीं होता था. तो उन्होंने क्या सोचा कि सिर्फ और सिर्फ जो कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर क्रॉप्स को भी उगाना पड़ेगा फॉर यूरोप, फॉर द कल्टीवेशन यहाँ पे करवाना पड़ेगा, ताकि यूरोप की जो पॉपुलेशन है उसकी पूर्ति की जा सके. सो बाय द लेट 18th century the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. So लास्ट 18th century तक कंपनी ने ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपियम एंड इंडिगो को इंडिया में कल्टिवेट किया जाए ना. ओपियम और इंडिगो होता क्या है? सो ये वी कैन सी दैट ये लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो ओपियम कल्टिवेट करवा रहे हैं, और ये सारा का सारा कहाँ जाता था? ब्रिटेन की तरफ. सो ये है इंडिगो, एंड दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ओपियम. ओपियम जिसे अफीम बोलते हैं, नशा जो हम देखें नशा करने के लिए जिसे यूज़ लिया जाता है. एंड ये है ये है इंडिगो. सो इंडिगो एंड ओपियम को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया में कल्टिवेट करने के लिए इंडियन कल्टिवेटर्स को फोर्स किया. सो इन द सेंचुरी and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra, and Punjab rice in Madras. So इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कल्टिवेटर्स को कहा नहीं जाता था, एक तरीके से फोर्स किया जाता था. यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सुएडेड और फोर्स्ड. सो फोर्स कर रहे हैं वो लोग इन चीज़ों को उगाने के लिए. यहाँ पर प्लेसेस और उन क्रॉप्स के नाम भी दिए गए हैं जो उन्हें फोर्सली, मतलब ज़बरदस्ती उनसे उगवाए जाते थे, कल्टिवेट करवाया जाता था. सो नाउ सेकेंड पैराग्राफ, हाउ डज दिस डन. अब ये होता कैसे था? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. अब जो कल्टिवेटर्स या फिर जो कल्टिवेशन उन्हें ब्रिटेन भिजवाना था, ब्रिटेन भेजना था, वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में कल्टिवेट करवाते थे. और कहाँ भेज देते थे? डायरेक्ट ब्रिटेन को भेज देते थे. तो एक तरीके से रेवेन्यू के साथ साथ वो लोग क्रॉप्स को भी चाहते थे कि क्रॉप्स भी इंडिया में उगें, और वो लोग कहाँ पर उसको भेज दें? वो लोग एक्सपोर्ट कर दें ब्रिटेन में. सो how was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed.
Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. So now we will discuss one example, that is another topic. Does color have a history? In figure 5 and 6 are two images of cotton prints. The image on the left, figure 5, shows a kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist in 18th century Britain. So in this page you can see here is a diagram. Here is a cotton print which is also known as kalamkari print, and this print is weaved by इंडियन वीवर्स. और जो इंडियन वीवर्स है वो कहाँ से रिलेट करते थे? आंध्र प्रदेश से. एंड ये जो प्रिंट है वो विलियम मॉरिस के द्वारा बनाया गया था, एंड विलियम मॉरिस रिलेट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से. तो ये दोनों प्रिंट्स हैं. अब इन दोनों प्रिंट्स में एक कॉमन चीज़ है, कलर्स. सेकेंड लास्ट लाइन, देयर इज़ वन थिंग कॉमन. Two prints, both use a rich blue color commonly called indigo. दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, रिच कलर, एंड उस ब्लू कलर को क्या बोला जाता है? इंडिगो. डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो. एंड हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ दैट प्लांट. हेयर इज़ द डायग्राम. हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ इंडिगो, एंड इसी पिक्चर, इसी इंडिगो से जो नीला कलर है वो आता है. नाउ the blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo. It is likely that the blue dye used in the Morris print in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. तो वो जो विलियम मॉरिस की जो प्रिंट है, जो उन्होंने 18th सेंचुरी में, ये वाली जो प्रिंट है जो उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में बनाई थी, वो किसकी हेल्प से बनाई थी? वो उन्होंने इंडिगो की हेल्प से बनाई थी. और वो इंडिगो कहाँ से आया है? वो इंडिगो आया है कल्टिवेटेड इन इंडिया. फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. एंड इंडिया एक बिगेस्ट सप्लायर था, वो अदर कंट्रीज़ को, अदर नेबरिंग कंट्रीज़ को इंडिगो प्रोवाइड करवाता था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो. सो इंडियन इंडिगो की इतनी डिमांड क्यों है? ऐसा क्या है हमारी ही धरती के इंडिगो में जो कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन ट्रॉपिक्स. नाउ ट्रॉपिक्स क्या होते हैं? With the help of this diagram we can see that the world map has been divided into some parts. First part, center, जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, ये है ट्रॉपिक्स. सो 0 डिग्री इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड सेम 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड का ये वाला जो पोर्शन है वो ट्रॉपिक्स कहलाता है. ये वाला जो पूरा पोर्शन है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये पोर्शन ये ट्रॉपिक्स कहलाता है. उसके बाद सब ट्रॉपिक्स, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, एंड दीज क्लासिफिकेशन ऑफ हीट जोन वी हैव स्टडीड इन द 6th क्लास. सो ये जो पार्ट है यहाँ पर इंडिगो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी में उगता है, क्योंकि इन्वायरमेंट इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो एक कोई भी कल्टीवेशन, मतलब वीट उगाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसे बहुत ठंडी जगह में उगा देंगे. हम लोगों के रहने के लिए ही एक अमाउंट में मौसम सही होता है. जैसे ठंड बढ़ जाती है तो हमें रज़ाइयों की ज़रूरत होती है, और जब गर्मी बढ़ जाती है तो एसी चलने लगता है. तो ये क्या है, जो टेम्परेचर की वजह से हम लोग अपनी ज़रूरतों को बदल लेते हैं. तो वही बात है कि यहाँ जो क्रॉप्स हैं उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं जिस लैंड सरफेस एरिया पर, जिस इन्वायरमेंट में वो उगते हैं. तो जो इंडिगो था वो इस इन्वायरमेंट में, ट्रॉपिक्स में बहुत अच्छे से ग्रो करता था. So the indigo plants grows primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. So 13th century आते आते जो इंडियन इंडिगो था, जो रिच ब्लू कलर हमें मिलता था, हमारे ब्लू कलर को इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग अपने क्लॉथ्स को डाई करने के लिए, उनका कलर चेंज करने के लिए यूज़ में लेते थे.
However, only small amount of indigo reached the European market and its price was very high. अब हम लोगों ने ये देखा है कि रूट कितना लंबा है. क्या रूट तय करना पड़ता है इनको? ये लंबा रूट तय करना पड़ता है. अब कोई भी चीज़ इतने लंबे रूट तक जा रही है, छोटी सी अमाउंट की है, तो ऑब्वियसली वो महंगी होगी वहाँ पर. तो इंडियन इंडिगो बहुत ज़्यादा उसके जो प्राइस थे वो हाई थे. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. So यूरोपियन कंट्रीज़ थे यहाँ पर, यूरोप, ये पूरा यूरोप है. हम तो बात सिर्फ इतनी जगह की करते हैं, इनसे हमारा लेना देना है. पर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, इंडिगो बहुत महंगा है उनके लिए, ज़रूरी नहीं है सब लोग अफोर्ड कर पाएँ. तो उन्होंने उसका एक एक्सेप्शन देखा. दूसरा एक प्लांट था जिसे हम कहते हैं वुड. हियर इज़ अ डायग्राम ऑफ वुड. वुड भी कलर चेंज करने के काम में आता था और वो बहुत ईजिली अवेलेबल था. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश दिस लाइन. वुड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज, ये भी कलर चेंज करता था वॉयलेट एंड ब्लू के अंदर. बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन्स, वुड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप. अब ये टेम्परेट जोन का है, ये पूरा टेम्परेट जोन है. ये देखिए पूरा का पूरा यूरोप टेम्परेट जोन के अंदर आ रहा है. हेयर इज टेम्परेट जोन. ये ट्रॉपिक है, ये सब ट्रॉपिक्स हैं, ये टेम्परेट है, ये फ्रिजिड है. वहीं यहाँ सब ट्रॉपिक है, यहाँ टेम्परेट है, यहाँ फ्रिजिड जोन है. सो ये पूरा टेम्परेट जोन में आता था. तो वुड जो है वो टेम्परेट जोन में अच्छे से ग्रो कर लेता था. फर्स्ट लाइन हियर, इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली. We will start from this. European cloth manufacturer therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. Being a plant of temperate zone, wood was easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France, and in part of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized the government to ban the import of indigo. So यहाँ पर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इंडिगो की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी इन कंपैरिजन टू वुड. सो अगर इंडिगो उनकी कंट्रीज़ में आने लग जाए तो वुड की तो वैल्यू नहीं रहेगी. तो इन्होंने क्या किया, कंपटीशन से बचने के लिए जो इंडिगो है, अपने गवर्नमेंट से कहलवा के, प्रेशराइज करवा के इंडिगो को बैन कर दिया कि जब इंडिगो आएगा नहीं तो लोगों को वुड यूज़ करना पड़ेगा. थर्ड paragraph, cloth dyers however preferred indigo as a dye. Indigo produced a rich blue color whereas a dye from wood is pale and dull. पर जो क्लॉथ डायर्स थे, अगर हमने क्वालिटी की बात कर ली, क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है इंडिगो की, इंडियन इंडिगो की. तो जो क्लॉथ डायर्स थे वो इंडिगो को प्रेफर करते थे. तो क्योंकि इंडिगो एक रिच ब्लू कलर प्रोवाइड करता था, वहीं पर वुड का कलर बहुत ही डल था. So by the 17th century, European cloth producers persuaded the governments to relax the ban on indigo import. पर 17th century आते आते इंडिगो पर जो बैन था उसको धीरे धीरे कम करने लग गए वो लोग. The French began cultivating indigo in Saint Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica and the Spanish in Venezuela. यहाँ पर इन जगहों की बात की गई कि इंडिगो को और जगह पर भी उगाया गया. इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में भी उगाया जा रहा है इंडिगो, यूरोप में भी उगाया जा रहा है इंडिगो. तो धीरे धीरे इंडिगो अदर पार्ट्स में भी उगाया जाने लग गया. By the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expand dramatically, creating the enormous new demand for cloth dyes, while the demand for indigo increased. Its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 to 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply. From where could this indigo be procured? So now by this paragraph हम लोग ये समझेंगे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था. कॉटन को बहुत ही ज़्यादा डाई
क्लॉथ्स को डाई करके इंडिगो को बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा था। बट वाइल द डिमांड ऑफ इंडिगो इंक्रीज, इसी वजह से इंडिगो की जो डिमांड थी वो बढ़ती ही जा रही थी। इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। तो कुछ रीजन्स की वजह से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो इंडिगो की जो सप्लाई थी वो बंद हो जाती है। बिटवीन 1783 to 1809 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। तो 1783 से 89 तक जो इंडिगो की प्रोडक्शन है वो लगभग आधी हो जाती है। सो क्लॉथ डायर्स, अब क्लॉथ डायर्स को क्या करना है, उनको एक नया सप्लाई ढूंढना है कि अब वो इंडिगो कहाँ से लाएं। तो उनकी जो सप्लाई की जो खोज होती है वो जाके इंडिया पे रुकती है। अब लोग यहाँ पर इंडिगो उगाने के लिए क्या हुआ, कल्टीवेट करने के लिए क्या हुआ, इंडिगो से क्या नुकसान होते हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।